हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन इस युद्ध में हमने क्या पाया, क्या खोया और क्या खोने को रह गया, इस पे हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे हर एक पहलू जो इस युद्ध का कारण बना और इसका परिणाम क्या निकला। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक आज क्या है। Immediately consequence of World War One. Immediately consequence of World War One. The World War One was one of the most disasters and fightings even the world had a witness. A million people, including innocent and civilians, lost their lives. There was a large scale of damage of property in most of the European countries. The total expenditure was estimated at the staggering of fight of $180 billion. There is $180 billion. There is the most important on the world. The economical of the most of country was shattered, is resulting in the social tension, unemployment and poverty. There is a important for here. Between January and June 1919, the Allies power met a conference in the places as Versailles, the Paris to decide to the future of defeated powers. Though the representatives of nearly 27 countries attended the conference, the discussion was taken by the head of state of Britain, France and USA also. There is a 27 countries attend their conference. The decision was taken by head of state of Britain, France and USA. Russia was excluded and the defected power were not allowed to be attend. The Allies signed different treaties with their defeated powers. The most important them were the Treaty of the Versailles signed with Germany, the Treaty of the East Germans with the Austria and the Treaty of Sub with the Turkey. That is important. The Treaty of Versailles shattered Germany as politically, economically, and militarily, and Germany was held guilty for aggression and was asked to pay a hug amount of money as a compensation for the war. There is a turning point for here. The Second World War in the rise, and this reason. The Treaty of Versailles is shattered Germany politically, economically, and militarily. Germany held guilty of aggression and was asked to pay a hug amount of money, a compensation for the war. Alaska is a loyalty which were is a take from France in 1871 and were to be returned to the France. Another land of the land between the France and Germany was demilitarized and both under control of Allied power. That also is the reason for Second World War here. The coal-rich Saar and Valley was given to France for 15 years. The coal-rich Saar Valley was given to the France for 15 years. Germany army was disbanded. Ship were sunk and the army was distracted to the 1 lakh soldier only. The Germany was despaired of all her colonies. Much of the territory in Europe were given to the Belgium and Poland. The Treaty of the East Germans separated to Hungary, where Austria and Hungary was made a independent state on this period of time. And Austria had to recognize their independence of Hungary and had to be give part of territory to the Slovakia, Romania, and Yugoslavia. There is the most important three states in this period times here. Czechoslovakia and Romania and Slovakia. The treaty itself was a block of the Ottoman Empire, and some of these states were given to the Allied power and maintained. Example of Palestine or Mesopotamia were a give of Britain and Syria to France. There is a important here. The Palestines in the Mesopotamia were given to Britain
and Syria to France, and their life power were took after this country till they become a self-reliant. That is important here. The war and the peace state is transforming the political map of the world and particularly Europe. You know that there is change of the political map of the world and particularly for the Europe. After the October Revolution in Russia, the ruling nationality of the Romanovs and the warmth is overwhelmed by the end of the war. And Hohenzollern, the century of Germany and is a Habsburg, country of Austria were removed and republic government was set up. That is important here. The Habsburg, the century of Austria were removed and republic government was set up. Monarchy was also established in this Turkey after the revolution in 1922. Monarchy was also abolished in Turkey after the revolution in 1922. And two new states, Czechoslovakia and Yugoslavia. There is a new two states. There is a Czechoslovakia and the Yugoslavia. There is a create out of territory taken from to the defected powers. And Hungary emerged as an independent state on this period of time. The Hungary is emerged as on the independent state. The blasted states such as the Estonia, Lithuania, and Latvia and the Finland, whereas a made a independent state. The states of Romania and Poland were enlarged in a size. The state Romania and Poland were enlarged in a size. All the changes to boundary of most of the state of Europe. All there is important. It was evident that a pay settlements were discarded and unequal settlement which were imposed upon the defected power. They had no say in the deliberations. There is the end of the war, say the end of European supremacy and emergence of USSR and the USS, a major power on this time. There is a supremacy of emerge of USSR and USA, a major power. The period also says the strengthenings of national a movement in the countries of the Asia, Africa. There is a important. The period also says the strengthening of the national movement in the country of Asia and Africa. Even before the war ended on November 1918, the USA President Woodrow Wilson had an approach to the pace of program now as the Wilson as a 14 point. The most important point was proposal for their establishment of international organization, the maintaining peace and security in their world. On the basis of the proposal, the legal and national set up in 1920. There is a most important thing for the Wilson foreign point here. There is a proposal for their organization of the international organization maintaining. There is the only here a main, there is a रोल है सिक्योरिटी ऑन द वर्ल्ड। यदि बात करें प्रथम युद्ध के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन परिणाम, आखिर प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन परिणाम क्या देखने को मिले? कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दुनिया के सबसे विनाशकारी और भयावह घटनाओं के रूप में देखा जा सकता है, यानी विनाशकारी और भयंकर युद्ध के रूप में देखा जा सकता है। इसमें निर्दोष नागरिक सहित 1 लाख लोगों को उनके जीवन से हाथ धोना पड़ा। नागरिक सहित 1 लाख लोगों को जो है जीवन से हाथ धोना पड़ा। अधिकांश यूरोपीय देशों में बड़े पैमानों पर संपत्ति का नुकसान हुआ। संपत्ति का नुकसान तो कहते हैं आम बात थी, सबसे अधिक नुकसान यहाँ पर हुआ तो वो हुआ पर्यावरण को। कुल खर्च 180 अरब डॉलर के जो है चौंका देने वाले आंकड़े का अनुमान लगाया गया था। देखिए 180 अरब डॉलर को जो है इसमें नुकसान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकांश देश की अर्थव्यवस्था टूटने लगी और चारों तरफ सामाजिक तनाव, बेरोजगारी और गरीबी फैल गई। क्योंकि जर्नल सी बात है 180 अरब डॉलर अगर इसमें खर्च होगी और जनजीवन नुकसान होगा तो कैसे जो है अर्थव्यवस्था जो है
टूटेगी नहीं। जनरल सी बात है, सामाजिक तनाव आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और गरीबी तो फैलेगी फैलेगी। जनवरी से जून 1919 के बीच मित्र देश की शक्तियां वर्साई के महल में सम्मेलन में मिले थे। यानी मित्र शक्ति जो थी वर्साई के महल में सम्मेलन में मिले थे, जिसमें पेरिस को पराजित और शक्तियों की भविष्य तय करना था, यानी पराजित शक्तियों का भविष्य तय करना था। हालांकि लगभग 27 देशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया और निर्णय ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका राज्यों के प्रमुख के द्वारा लिया गया। यानी देखा जाए तो इसमें जो है मेन उभर के जो यहाँ पर देश आया वो निर्णय लिए गए, ब्रिटेन ने लिया, फ्रांस ने लिया और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस पर निर्णय लिया। रूस को बाहर रखा गया था और पराजित शक्तियों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं थी। और मित्र राष्ट्रों ने पराजित शक्तियों के साथ विभिन्न संधियों पर हस्ताक्षर भी किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण वर्सल की संधि पर जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किए गए थे और ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन के संधि और तुर्की के साथ कार्य करने की संधि थी। वर्सल की संधि से जर्मनी राजनीतिक और आर्थिक सैन्य रूप से बिखर गया, क्योंकि वर्सल की संधि जो थी, वर्सल की संधि महत्वपूर्ण थी और ये जर्मनी राजनीतिक और आर्थिक रूप से काफ़ी बिखर गया। जर्मनी को आक्रमणकर्ता का दोषी ठहराया गया था और युद्ध के लिए जो है मुआवजे के रूप में पैसों की एक बड़ी राशि भुगतान करने के लिए कहा गया। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो देश हार गए थे उनको दोषी ठहराया गया और उनको मुआवजा के लिए बहुत बड़ी रकम देने को कहा गया। अलेक्सिस और लैरन को फ्रांस में 1871 में मिला लिया गया था। फ्रांस में जो है अलेक्सिस और लैरन को जो है फ्रांस में मिला लिया गया। और देखा जाए तो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक गैर सैन्यकरण किया हुआ और मित्र देशों की शक्तियों के नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया था और कोयला समुद्र द्वारा घाटी 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया, क्योंकि इससे फ्रांस को काफ़ी लाभ हुआ। जर्मन सेना को भंग किया गया था और जहाज़ों को डुबा दिया गया और केवल 1 लाख सैनिकों को जो है प्रतिबंधित किया गया था। जर्मनी को उसके सभी उपनिवेश को वंचित कर दिया गया, यानी जर्मनी को सारे उपनिवेश से वंचित कर दिया गया और यूरोप में उसके बहुत से प्रदेशों को जो है बेल्जियम और पोलैंड को दे दिए गए। तो ये महत्वपूर्ण बात था। और सेंट जर्मन के संधि में ऑस्ट्रिया ने हंगरी को अलग कर दिया गया और हंगरी को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया था। ऑस्ट्रिया को हंगरी और स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की गई थी कि उसे अपने प्रदेशों के लिए हिस्से में चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और यूगोस्लाविया को देने के लिए बाध्य किया गया। अब देखिए ये बात बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण था कि ऑस्ट्रिया से हंगरी की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उससे जो है चेकोस्लोवाकिया और रोमानिया और यूगोस्लाविया ये तीनों राज्य देने के बाध्य किया गया। और ये तीनों जो राज्य थे बहुत महत्वपूर्ण थे और इन्हीं तीनों को लेने के कारण जो है दूसरा युद्ध भी लड़ा गया, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, दूसरा विश्व युद्ध। और दूसरा विश्व युद्ध का कारण यही 3 राज्य बने। कहते सर्वस की संधि ने तुर्क साम्राज्य का पतन कर दिया और इसे कुछ राज्यों को जो है जान देश के रूप में मित्र देशों को अधिकार में दे दिया गया, क्योंकि इससे जो हुआ वो मित्र देशों को ही फायदा हुआ और मित्र देश को सभी जो इम्पोर्टेंट जगह थी वो मिल गया। उदाहरण के लिए फिलिस्तीन और जो मेसोपोटामिया फ्रांस, ब्रिटेन और जो है सीरिया को दे दिया गया। सीरिया को जो है दे दिया फिलिस्तीनिया और मेसोपोटामिया फ्रांस, ब्रिटेन और सीरिया को दे दिया गया। मित्र देश इन देशों के तब तक देखेंगे जब तक कि आत्मनिर्भर नहीं बन जाते। अब देखिए इसमें भी बहुत बड़ी बात थी, इन्होंने ये बात कहा कि जब तक ये उनको देखेंगे जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो जाएंगे। आपको लगता है कि कोई देश उस देश में राज्य कर रहा हो और उसको आत्मनिर्भर बनाने के अग्रसर हो? संभव ही नहीं है। युद्ध और शांति संधियों ने दुनिया के विशेष रूप से यूरोप के राजनीतिक नक्शों को ही बदल दिया। कहते हैं ये कभी महत्वपूर्ण बात रहती है, अगर कहीं युद्ध होता है या कुछ प्रॉब्लम आती है तो कहते हैं दुनिया में जो है नक्शा ही बदल जाता है। जैसे आप देखिए भारत का भी नक्शा कुछ और था, लेकिन जब पाकिस्तान जो है बंटवारा के लिए मांग किया तो भारत का नक्शा ही बदल गया। तो ये कोई भी देशों के लिए हो सकता है। कहते हैं युद्ध किसी भी देश के नक्शा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त होती है। कहते हैं रूस में अक्टूबर क्रांति के बाद जो है रोमानिया और सत्तारूढ़ राजवंश को परास्त किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि रूस में अक्टूबर क्रांति हुई थी, जिसमें रोमानिया और सत्तारूढ़ राजवंश को जो है परास्त कर दिया गया था।
और युद्ध के अंत के द्वारा जर्मनी और ऑस्ट्रिया का जो है होलजोलर राजवंश हेल्गवर्ग राजवंश को हटा दिया गया, यानी राजवंश की जो है यहाँ पर समाप्ति हो गई। गणराज्य सरकार की स्थापना किया गया और 1922 में क्रांति के बाद तुर्की में भी राजशाही समाप्त कर दिया गया, यानी तुर्की में भी राजशाही सदैव के लिए समाप्त हो गया। पराजित शक्तियों के लिए गए प्रदेशों में दो नए राज्य जो है चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया को बनाया गया। देखिए, पराजित शक्तियों के लिए एक प्रदेश में दो राज्य जो है चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया को बनाया गया। हंगरी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उस समय उभरा, यानी हंगरी जो था एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। और एस्टोनिया, लिथुआनिया और लात्विया और फिनलैंड स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर के सामने आया। रोमानिया और पोलैंड के राज्यों को आकार बढ़ा दिए गए। रोमानिया और पोलैंड के राज्य के आकार जो है काफ़ी बढ़ा दिया और इससे यूरोप के अधिकांश राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर दिया गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी और यह स्पष्ट था कि पराजित शक्तियों के साथ किए गए शांति समझौता और असामान्य जबरदस्ती पराजित शक्तियों पर थोपे गए समझौता थे। ये तो आप भली भांति जानते हो कि ये जो जबरदस्ती और असामान्य समझौते थे और इसको कोई देश नहीं मान रहा था, क्योंकि इससे इनका अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ रही थी। इवन कि कहते हैं बहुत से रकम जो है देशों को चुकाने के लिए भी कहा गया जो पराजित देश थे और कई राज्यों को उनसे छीन भी लिया गया। और यही सब कारण बना दूसरे विश्व युद्ध का भी, जहां हिटलर ने अपना और जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया इस युद्ध के लिए और इसने युद्ध लड़ा और कहते हैं इस युद्ध में बहुत ही विनाश हुआ, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, कि हिटलर की वहाँ पर जो नीतियाँ थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और देखा जाए तो लेनिन का भी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षा था, जिसके बारे में हम जो सेकेंड विश्व युद्ध के अंतर्गत बात करेंगे। कहते हैं बिना विमर्श जो है विचार विमर्श किए हुए थे, क्योंकि सारे समझौते जो थोपे गए थे उन पे वो बिना विचार विमर्श किए, क्योंकि आपने अभी पर जाना भी है कि जब ये मीटिंग हो रही थी तो पराजित देशों को उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। मित्र राष्ट्रों ने अपनी मनमर्जी की सारी बातें बनाई और उनको जो है पराजित देशों को जो है समझौता जो है ज़बरदस्ती थोप दिया गया। युद्ध के अंत में यूरोपीय वर्चस्व के अंत और सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है प्रमुख शक्तियों के रूप में उद्भव भी देखा गया। यानी इसमें जो है दो मेन राष्ट्र उभर के सामने आए। यूरोपीय विश्व के अंत को जो है सोवियत संघ ने पैदा उठाया और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। और इसी अवधि में एशिया अफ्रीका के देशों में भी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती बनते देखा गया। यानी देखा जाए तो इस युद्ध ने एशिया अफ्रीका के देशों में भी राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती बनते देखा गया। और इससे पहले भी नवंबर 1918 में युद्ध समाप्त होता तो कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक शांति कार्यक्रम प्रस्ताव भी किया, जिसे विल्सन के 14 सूत्रों के रूप में जाना जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है शांति और सुरक्षा स्थापित करना, लेकिन जब कहते हैं हम जो है बम और गोली और बारूदों के ऊपर खड़े हैं तो शांति और सुरक्षा की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि कहते हैं बड़े बड़े परमाणु बम हथियार जो होते हैं किसी भी कंडीशन से कभी भी रिएक्ट कर जाते हैं, तो आप शांति की बात वहाँ पर नहीं कर सकते। भारत सदैव ही इन खतरों को जो है आगाह पूरा विश्व को करता आया है और ये बहुत ज़रूरी भी है। और इस प्रस्ताव के आधार पर लीग ऑफ नेशन जो 1920 में स्थापित किया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। चलिए देखते हैं कि लीग ऑफ नेशन में जो 1920 में स्थापित किया गया आखिर किस बातों की तरफ इशारा करता है।